हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स में। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कैपिटल रिडक्शन की बेसिक डिटेल्स के बारे में, जर्नल एंट्रीज के बारे में, स्पेसिमेन ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ कैपिटल रिडक्शन के बारे में। जितने भी एडजस्टमेंट रहेंगे स्टेप बाय स्टेप सारे एडजस्टमेंट हम सॉल्व करेंगे, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करेंगे और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ ये सम जो है और ये क्वेश्चन वो सॉल्व करें, ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, कोई भी एंट्रीज और एडजस्टमेंट छूट ना जाए। इसके लिए ये वीडियो पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ कैपिटल रिडक्शन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रैक्टिकल सम ऑफ कैपिटल रिडक्शन। The balance sheet of a Shubh Company Limited as on 31st March 2018 was as under। हमको शुभ कंपनी लिमिटेड की 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दी गई है, जिसमें लायबिलिटी साइड फर्स्ट थिंग इज इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल in which 5000 equity shares of rupees 100 each fully paid, total amount 5 lakh rupees, 30,000 10% cumulative preference shares of rupees 10 each fully paid 3 lakh, security premium 5,000, workman accident compensation fund 25,000, outstanding interest on debentures 6,000, on asset side goodwill 90,000, freehold assets 1,50,000, plant and machinery 2,40,000 less depreciation of rupees 20,000, so remaining is 2,20,000, leasehold assets 1,50,000, investment 90,000 and debtors जो है वो है 1,50,000. then after again liability side 12% debentures 1,10,000, creditors 1,70,000, bank overdraft 10,000. then contingent liabilities, first cumulative preference share dividend for 2 years and second is claim for accident rupees 6,000. and on asset side stock 1,10,000, preliminary expenses 20,000 and profit and loss account 1,46,000. total of this balance sheet is 11,26,000. now let's see कौन कौन से एडजस्टमेंट जो है दिए गए हैं। इस सम में मैंने ट्राई की है कि हम जो कॉमन एडजस्टमेंट या जो मैक्सिमम एडजस्टमेंट पूछे जा सकते हैं वो सारे एडजस्टमेंट हमने इस वीडियो में इंक्लूड करने की ट्राई की है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एडजस्टमेंट इस सम में है। फर्स्ट इज ईच इक्विटी शेयर शेल बी सब डिवाइडेड इनटू 10 fully paid equity shares. then after subdivision equity shares to be reduced up to rupees 3, second adjustment. then after third adjustment is out of arrears of preference dividend 60% is to be cancelled and the balance dividend to be paid in cash. fourth, debenture holder to give up their claim on outstanding interest and to take over freehold property at 60,000 which has a book value of 40,000। यानी कि जो freehold property की बुक वैल्यू 40,000 है वो डिबेंचर होल्डर कितने में ले जा रहे हैं 60,000 में, इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर ड्यूज। then fifth adjustment is the remaining freehold property was valued at rupees 1,30,000. sixth adjustment is 10% cumulative preference share to be reduced by rupees 3. then seventh adjustment is investment were sold for rupees 1 lakh. then eighth adjustment is out of total creditors the creditors of rupees 1 lakh accepted equity shares of rupees 10 each fully paid for 85% of their dues. then after 10% in cash and waived the remaining balance. Ninth adjustment, the claim for accident compensation was accepted. 10th adjustment,
द कंपनी recovered rupees 20,000 as damage claim from a third party and it was utilized to write off capital losses. 11th adjustment, all credit balance not being the outside liabilities and all debit balance not being the amount receivable as well as the intangible assets are to be written off. 12th adjustment, 1/6 of the leasehold property to be written off. 13th adjustment, the remaining amount is to be utilized in writing down plant, machinery, stock and debtors in proportion of their book values. And last adjustment, 14th, that is bank overdraft was paid in cash. Now इस समय हमको क्या बनाना पड़ेगा या फिर इस समय हमको क्या प्रिपेयर करना है ये देख लेते हैं. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज to record about transaction in the books of the company and prepare balance sheet after implementation of scheme. That is capital reduction की जो स्कीम है वो ख़त्म हो जाने के बाद हमको न्यू बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी. तो ये सारे जो एडजस्टमेंट है वो हम पहले बैलेंस शीट में टिक मार्क कर लेते हैं ताकि कोई भी एडजस्टमेंट रह ना जाए और सारे एडजस्टमेंट जो है वो हम अच्छी तरीके से इंक्लूड कर लें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर में भी एडजस्टमेंट है, प्रेफरेंस शेयर में भी एडजस्टमेंट है. सो वहाँ पे हमने रेड डॉट जो है रेड पॉइंट जो है वो हमने किया है. वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड में भी एडजस्टमेंट है. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है उसमें भी एडजस्टमेंट है. गुडविल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और एक सिक्योरिटी प्रीमियम जो है उसमें भी एडजस्टमेंट है. देन 12% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है कंटीजेंट लायबिलिटीज़ में, एंड क्लेम फॉर एक्सीडेंट जो है उसमें भी है एडजस्टमेंट. स्टॉक में है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डेबिट बैलेंस है उसमें भी एडजस्टमेंट है. तो चलिए देखते हैं सारे एडजस्टमेंट सोल्व करते हैं. तो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट हम सोल्व करने जा रहे हैं दैट इज़ ईच इक्विटी शेयर शेल बी सब डिवाइडेड इनटू 10 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर. अब यहाँ पे आप समझिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो रिड्यूस फर्स्ट एडजस्टमेंट में नहीं हो रही है. उसकी जो 100 रुपीज़ प्राइस है एक शेयर की उसको सब डिवाइड करके एक शेयर की 10 रुपीज़ प्राइस जो है वो रखनी है. यानी कि एक शेयर जो 100 का था वो अब 10 शेयर हो जाएंगे 10 रुपीज़ ईच. ओके, तो चलिए देखते हैं कि अब इस एडजस्टमेंट में जो है वो क्या होगा. सब डिवाइडेड इनटू 10 इक्विटी शेयर फुल्ली पेड, ये तो हमको एडजस्टमेंट में कहा गया है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 1:10, यानी कि अगर एक इक्विटी शेयर है वो 10 शेयर में डिवाइड हो गए. तो अभी बैलेंस शीट में हमको 5000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए गए हैं. तो अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने होंगे, अगर एक के हम 10 इक्विटी शेयर कर रहे हैं तो 5000 के कितने होंगे. तो इसके लिए हमको 5000 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड डिवाइडेड बाई 1 यह करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो वी गेट आंसर 50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच. अब तक जो इक्विटी शेयर 5000 के थे, अब तक जो 5000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे वो अब हो गए हैं 50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. पहले इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ के थे एक शेयर जो है, अब वो हो गया है 10 रुपीज़ का एक शेयर. तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, हमने इक्विटी शेयर को सब डिवाइड कर दिया. नाउ सेकंड एडजस्टमेंट, आफ्टर सब डिवीजन इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस अप टू ₹3. अब ये समझिएगा, अगर आपको कहा गया है कि इक्विटी शेयर रिड्यूस अप टू ₹3, उसका मतलब है कि अब जो इक्विटी शेयर की वैल्यू है वो 3 रुपीज़ रहेगी. अगर आपको कहा गया होता कि रिड्यूस इक्विटी शेयर बाय ₹3, तो आपको इक्विटी शेयर जो है वो 3 रुपीज़ रिड्यूस करना पड़ता. तो बाकी की जो वैल्यू बच जाती वो इक्विटी शेयर की जो है
वो रिमेनिंग वैल्यू कहलाती। से फॉर एग्जांपल अगर अप टू या टू कहाँ गया है तो वो वैल्यू रहेगी। से फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपीज़ है और कहाँ गया अप टू ₹3 इट इज़ रिड्यूस, तो अब इक्विटी शेयर की वैल्यू रहेगी 3 रुपीज़ और 7 रुपीज़ रिड्यूस करने पड़ेगी। अगर उसकी जगह आपको कहाँ गया है रिड्यूस बाय 3, तो 10 रुपीज़ का जो शेयर है उसमें से हमको 3 रुपीज़ माइनस करने पड़ेंगे और 7 रुपीज़ जो है वो इक्विटी शेयर की वैल्यू होगी। तो ये अप टू और बाय दोनों में डिफरेंस है, अप टू ₹3 और बाय ₹3, यहाँ पे आपको खास समझना है। सो नाउ इक्विटी शेयर इज ₹3 बिकॉज उसमें कहाँ गए अप टू ₹3 हमको रिड्यूस करना है। सो ₹7 पर शेयर इज नीड टू बी रिड्यूस। हमारे पास अब इक्विटी शेयर हो गए हैं 50,000, पर शेयर 7 रुपीज़ जो है वो रिड्यूस करने हैं, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7, सो जो अमाउंट आ जाएगी 3,50,000, सॉरी यहाँ पे एक ज़ीरो की मिस्टेक है, इट इज़ 3,50,000। 3,50,000 जो है वो हमको रिड्यूस करने पड़ेंगे। देन थर्ड एडजस्टमेंट, आउट ऑफ एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 60% इज टू बी कैंसल एंड द बैलेंस डिविडेंड टू बी पेड इन कैश। एरियर्स इन डिविडेंड जो है वो 2 इयर्स का है, यानी कि हमको प्रेफरेंस से डिविडेंड 2 इयर्स का जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसमें से 60% जो है वो पे नहीं करना है। तो कैपिटल रिडक्शन का जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से जब तक हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक वो हमारी लायबिलिटी कंसिडर नहीं होगी। अगर हमने डिक्लेयर किया तो ही वो लायबिलिटी कंसिडर की जाएगी। तो 60% तो हम ऐसे ही कैंसिल कर रहे हैं, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। बैलेंस जो बच जाएगा यानी कि 40% है, उसकी हमको जो है डिक्लेयर करने की और पे करने की एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। एरियर्स इन डिविडेंड ऑफ 2 years is equal to 3 lakh, that is the amount of preference share, multiply by 10 because जो preference share है वो 10% के है। So 3 lakh multiply by 10 divided by 100 and multiply by 2 again। Why? because हमको 2 years का जो है वो डिविडेंड कैलकुलेट करना है। तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 60,000 रुपीज़ 2 ईयर का डिविडेंड। अब जो उसमें से 60% अमाउंट हम कैंसिल कर रहे हैं वो कैलकुलेट करते हैं। 60% अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैंसिल इज इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100। सो आंसर इज 36,000। तो 36,000 रुपीज़ इज कैंसल। सो रिमेनिंग कितना बच जाएगा 40%। 40% पेड इन कैश। तो वो कैलकुलेट करते हैं। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ ₹24,000। सो कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर को 24,000 डिविडेंड पे करेगी। देन फोर्थ पॉइंट, डिबेंचर होल्डर टू गिव अप देयर क्लेम ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट 60,000 जिसकी बुक वैल्यू है 40,000 इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर ड्यू। तो यहाँ एक एडजस्टमेंट में हमको 2 चीज़ें कही गई है। एक तो है जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है डिबेंचर होल्डर का, वो डिबेंचर होल्डर जो है वो वेव कर रहे हैं, यानी कि वो फॉरगोन कर रहे हैं, तो वो हमको पे नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अल्टीमेटली वो कंपनी को बेनिफिट होगा। और सेकंड थिंग जो है डिबेंचर होल्डर अपने पार्ट पेमेंट यानी कि अपने जो टोटल डेट है उसमें से पार्ट पेमेंट वो ले रहे हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के रूप में। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंटरेस्ट वेव और गिव अप बाय डिबेंचर होल्डर इज इक्वल्स टू 6,000 रुपीज़। ये 6,000 रुपीज़ डायरेक्टली हमको बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के रूप में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो वो हमको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेकन ओवर, जिसकी डिबेंचर होल्डर ले जा रहे हैं उसकी वैल्यू है 60,000 रुपीज़, वो ले जा रहे हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल बुक वैल्यू जो है वो कितनी है 40,000 रुपीज़। तो अल्टीमेटली कंपनी को 20,000 का प्रॉफिट होगा और वी कैन से इट इज़ अ अप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जो हम कैपिटल रिडक्शन के समय यूटिलाइज कर सकते हैं। जो 20,000 इंक्रीमेंट मिला है वो। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, द रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज वैल्यूड एट 1,30,000। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
कि टोटल जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसमें से डिबेंचर होल्डर जितना ले जा रहे हैं वो माइनस करके जो बच जा रही है और जो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उससे कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि जो रीवैल्यूड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसमें कंपनी को कोई गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टोटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो बैलेंस शीट में दी गई है वो है 1,50,000, उसमें से टेकन ओवर बाय डिबेंचर होल्डर 40,000 जिसकी बुक वैल्यू थी वो हम माइनस करते हैं, तो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट बुक वैल्यू हमको मिलती है 150 माइनस 40 विच इज़ 1,10,000। अब ये जो 1,10,000 है उसको रीवैल्यूड करके कितना जो है बताया गया है 1,30,000। सो सेकेंड पॉइंट इज रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज 1,30,000 और उसकी बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज 1,10,000। सो 1,30,000 माइनस 1,10,000 गिव्स अस 20,000 रुपीज़ इंक्रीज इन द वैल्यू। सो इसके पहले के एडजस्टमेंट में हमने देखा जो डिबेंचर होल्डर ले जा रहे हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वहाँ भी 20,000 का जो है इंक्रीमेंट मिल रहा है और रीवैल्यूड करने पर भी 20,000 का इंक्रीमेंट जो है वो मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पे हमको 40,000 का इंक्रीमेंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में मिलेगा। उसके बाद 6th पॉइंट, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹3। अब यहाँ पे आप देखिएगा वर्ड यूज़ किया गया है बाय ₹3, यानी कि 3 रुपीज़ हमको कम करने हैं टोटल जो फेस वैल्यू है उसमें से। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ हम रिड्यूस करेंगे तो 7 रुपीज़ जो है वो नई फेस वैल्यू कंपनी की रहेगी। सो हियर वी नीड टू रिड्यूस ₹3 पर प्रेफरेंस शेयर। सो 30,000 दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर multiply by 3 rupees is equals to 90,000 which is amount reduced. Then after 7th point, investment were sold for 1 lakh rupees। अब जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख के सोल्ड के किए हैं उसकी बुक वैल्यू कितनी है वो हम देखते हैं ताकि पता चले प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो चलिए देखते हैं। अमाउंट ऑफ सेलिंग इज़ 1 लाख रुपीज़ और बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की थी वो कितनी है 90,000। सो 1 lakh minus 90,000, 10,000 is the profit on selling of investment। ये प्रॉफिट जो है वो हम कैपिटल रिडक्शन में प्लस करेंगे ताकि उसको जो है कैपिटल रिडक्शन जब हम यूटिलाइज करें तब, यानी कि जब हम लॉस जो है वो राइट ऑफ करें तब हम उसको यूज़ कर सकते। नेक्स्ट 8 पॉइंट हम देखते हैं। आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स the creditors of ₹1 lakh accepted equity shares of ₹10 each fully paid for 85% of their dues, 10% in cash and waived the remaining balance। अब इस एडजस्टमेंट में क्या कहा गया है कि 1 लाख के जो क्रेडिटर है वो 85% अपना क्लेम इक्विटी शेयर में ले रहे हैं, यानी कि हम क्रेडिटर्स को जो 1 लाख के क्रेडिटर्स है उसको 85% के इक्विटी शेयर देंगे, 10% के जो क्रेडिटर है उनको हम कैश देंगे और जो रिमेनिंग है जो बच जाएगा वो क्रेडिटर्स जो है फॉरगो कर देंगे, यानी कि वो क्रेडिटर्स अमाउंट जो है वो अपनी फॉरगो कर देंगे, वो नहीं लेंगे। तो चलिए देखते हैं। आउट ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ 1 लाख रुपीज़, फर्स्ट 85% क्रेडिटर्स एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड। अब यहाँ पे आप देखिएगा पहले हमने इक्विटी शेयर की वैल्यू रिड्यूस की हुई है 3 रुपीज़, ओके 3 रुपीज़ तक। अब इक्विटी शेयर जो है वो 3 रुपीज़ के है, यानी कि जो पहले 10 रुपीज़ के थे उसमें से हमने 7 रुपीज़ रिड्यूस कर दिए, अब वो 3 रुपीज़ के रह गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो हम इक्विटी शेयर देंगे उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड अप है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में कहा गया है। तो हमको यहाँ पे 10 रुपीज़ के इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। सो जब हम फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारे पास एक क्लास ऑफ इक्विटी शेयर होगा जो 3 रुपीज़ का होगा और ये एक क्लास ऑफ इक्विटी शेयर रहेगा जो 10 रुपीज़ का रहेगा, ओके। सो बैलेंस शीट में हमारे पास 2 टाइप के इक्विटी शेयर रहेंगे। एक की होगी फेस वैल्यू 3 रुपीज़ जो कि हमने रिड्यूस की हुई है पहले, और ये जो
क्रेडिटर्स को इश्यू होंगे उसकी फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज़। तो ये बात जो है वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय हमको ध्यान में रखनी है। तो चलिए देखते हैं। ₹10 ईच फुल्ली पेड, सो 1 लाख उसके 85% यानी कि 85 मल्टीप्लाई बाई 85 डिवाइडेड बाई 100, सो अमाउंट इज़ 85,000। यहाँ पे इक्विटी शेयर इश्यूड जो नंबर रहेंगे वो है 8,500 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, सो इस तरह से हमको 85,000 टोटल अमाउंट मिलेगी। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, 85,000 डिवाइडेड बाई 10 रुपीज़ जो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है, तो आपको इक्विटी शेयर के नंबर मिलेंगे 8,500। आप ऐसे भी कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, 10% पेड इन कैश, सो 1 लाख के हमको 10% करने पड़ेंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, सो अमाउंट मिलेगी हमको 10,000 रुपीज़। अब जो बैलेंस बच जाता है यानी कि 85% इक्विटी 10% कैश, सो 85 प्लस 10 95% तो हो गया। तो बैलेंस अब कितना रहेगा, 100 माइनस 85 माइनस 10, सो बैलेंस इज इक्वल्स टू 5%। सो 1 लाख multiply by 5 divided by 100, so remaining 5,000 is waived by debenture holder। ओके, उसके बाद देखते हैं द क्लेम फॉर एक्सीडेंट कंपेंसेशन वॉज एक्सेप्टेड। ओके, जो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है उसका क्लेम जो है एक्सेप्ट किया गया है। सो अमाउंट ऑफ क्लेम जो बैलेंस शीट में ही हमको दी हुई है वो है 6,000 रुपीज़, जो कि कंपनी पे करेगी। देन आफ्टर 10th एडजस्टमेंट द कंपनी रिकवर्ड ₹20,000 एज डैमेज क्लेम फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड इट वॉज यूटिलाइज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस। जो डैमेज क्लेम की अमाउंट रिकवर की है कंपनी ने 20,000, वो कंपनी के लिए बेनिफिट है और कंपनी के लिए वो कैपिटल रिडक्शन के लिए जो फंड कलेक्ट करते हैं उसमें ये यूज़ होगा, और ये जो लॉस है वो राइट ऑफ करने के लिए कंपनी जो है वो यूटिलाइज करेगी। 11th एडजस्टमेंट, ऑल क्रेडिट बैलेंस नॉट बीइंग द आउटसाइड लायबिलिटीज एंड ऑल डेबिट बैलेंस नॉट बीइंग द अमाउंट रिसीवेबल एज वेल एज द इंटेंजिबल असेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो इस एडजस्टमेंट में क्या कहा गया है कि जो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है उसके अलावा जितनी कंपनी की जो बैलेंस रहेगी क्रेडिट बैलेंस आउटसाइड लायबिलिटी के अलावा, वो सारी जो है वो राइट ऑफ करनी है, एज वेल एज जितनी भी डेबिट बैलेंस है जो अमाउंट रिसीवेबल के अलावा है वो भी राइट ऑफ करनी है। उसके साथ साथ इंटेंजिबल असेट्स जो है वो भी राइट ऑफ करनी है। तो अगर हम डेबिट बैलेंस की बात करें, नॉट बीइंग अमाउंट रिसीवेबल एंड इंटेंजिबल असेट्स, ये दोनों इंटेंजिबल असेट्स राइट ऑफ करनी पड़ेगी, और जो अमाउंट रिसीवेबल के अलावा जो डेबिट बैलेंस है वो भी राइट ऑफ करनी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो ऐसा फर्स्ट थिंग इंटेंजिबल असेट्स एक गुडविल है तो 90,000 रुपीज़, तो वो हम राइट ऑफ करेंगे। देन आफ्टर एक इंटेंजिबल असेट्स में एक गुडविल है, और उसके बाद जो लॉसेस है रिसीवेबल नहीं है लेकिन क्या है लॉस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 वो भी हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और उसके अलावा एक P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस जो है वो 1,46,000 वो भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट बैलेंस देखें तो बैलेंस शीट जो कि आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, तो ऐसी बैलेंस शीट में एक है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड WACF, वो 19,000, जो टोटल थी 25,000 में से 6,000 का क्लेम कंपनी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, तो 25,000 माइनस 6,000, सो रिमेनिंग 19,000 जो है वो हमको राइट ऑफ करना है। और उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम भी जो है वो दिया हुआ है 5,000, वो भी हम यूज़ करेंगे राइट ऑफ करने के लिए।
ओके। एंड 12th एडजस्टमेंट, 1/6 ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रिटर्न ऑफ। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू है उसमें से 1/6 वैल्यू जो है वो हम राइट ऑफ करेंगे। सो टोटल लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000, 1/6 रिटर्न ऑफ इज इक्वल्स टू 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 6। सो अमाउंट आ जाएगी 25,000। सो 150 माइनस 25, सो रिमेनिंग लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज 1,25,000 जो हमको बैलेंस शीट में दिखानी है, और 25,000 जो रिड्यूस कर रहे हैं वो हम कैपिटल रिडक्शन में से अमाउंट लेके उसको रिड्यूस करेंगे। और उसके बाद जो एडजस्टमेंट है, द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी यूटिलाइज इन राइटिंग डाउन द प्लांट मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर बुक वैल्यू। अब यहाँ पे समझिएगा, हमको इस सम में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे एक बात जो है वो कही गई है, दैट इज़ जो भी अमाउंट रिमेनिंग रहेगी कैपिटल रिडक्शन में वो प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स जो है उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करी जाएगी। अगर कोई भी सम में अगर आपको ये कहा जाता है कि रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे यूज़ करनी है, या फिर जो भी अमाउंट डेफिसिट है वो आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में से ला सकते हो, अगर ऐसी कोई बात है तो उसमें आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जनरली प्रिपेयर करने को नहीं कहा जाता है। लेकिन कैपिटल रिडक्शन में जो एलिमेंट आता है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वो रिमेनिंग अमाउंट फाउंड करनी है वो ढूंढने के लिए आपको कैपिटल रिडक्शन के जो एलिमेंट है उसके हिसाब से जो आइटम्स है वो उसमें आपको दिखानी पड़ेगी, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि कितनी रिमेनिंग बैलेंस है जो राइट ऑफ करने के लिए यूज़ होगी, या कितना जो डेफिसिट है वो कंपनी को फंड जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमको रिमेनिंग बैलेंस ढूंढनी है प्लांट मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स के जो प्रोपोर्शन में राइट ऑफ करना है उसके लिए। तो दो साइड है हमारे पास। फर्स्ट इज कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज। सो कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज हम कब कर पाएंगे? जब हमारे पास कैपिटल रिडक्शन का जो फंड है वो होगा। सो कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देखते हैं, कैपिटल रिडक्शन, यानी कि जो कंपनी कैपिटल रिड्यूस करने के लिए फंड कहाँ से कलेक्ट करेगी और अमाउंट कहाँ से कलेक्ट करेगी वो हम देखते हैं। या फिर कंपनी को कहीं से भी गेन हो रहा है, कहीं से भी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सब कैपिटल रिडक्शन में आएंगे। वो कलेक्ट कर रही है कंपनी, फंड कलेक्ट कर रही है। तो कैपिटल रिडक्शन में अगर हम देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी ने रिड्यूस की है 3,50,000। देन 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो भी रिड्यूस की है कंपनी ने 90,000। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर ने वेव कर दिया है, सो अल्टीमेटली इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर और बेनिफिट फॉर कंपनी, तो वो भी हम लिखेंगे 6,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है टोटल 40,000 रुपीज़ है। प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो 10,000 रुपीज़ है। क्रेडिटर्स ने अपना जो क्लेम था वो वेव किया है, वो है 5,000। और डैमेज का क्लेम जो कंपनी को मिला है वो भी कंपनी के लिए एक बेनिफिट है, सो उसकी अमाउंट है 20,000 रुपीज़। देन वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो उसकी जो नेट अमाउंट आएगी वो है 19,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम जो हम राइट ऑफ करेंगे, सो वो भी कंपनी के लिए एज अ फंड हम यूज़ कर सकते हैं कैपिटल रिडक्शन के लिए, सो उसकी अमाउंट है 5,000 रुपीज़। सो ये सारे जो एलिमेंट है उसमें से कंपनी को रुपीज़ मिलेंगे। अब देखते हैं ये कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज कौन कौन सी चीज़ों को राइट ऑफ करने के लिए, या कौन कौन से जो असेट्स है और लॉसेस है और एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ करने के लिए किया जाएगा। सो एक गुडविल हम इंटेंजिबल असेट्स के तौर पे राइट ऑफ करेंगे 19,000। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 20,000 जो है वो भी हम राइट ऑफ करेंगे। P&L अकाउंट के जो बैलेंस है 1,40,000, जो एक्चुअल में लॉस है वो भी हम राइट ऑफ करेंगे। आफ्टर दैट प्रेफरेंशियल डिविडेंड हम पे कर रहे हैं,
सो इट इज़ एक्सपेंस फॉर कंपनी, सो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे 24,000 रुपीज़। और लीज होल्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी वैल्यू में भी जो है वो हमको रिडक्शन करना है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 25,000, सो वो भी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली कैपिटल रिडक्शन साइड हमारे पास जो टोटल है वो है 5,45,000। उसमें से हम जो कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी अमाउंट है 3,05,000। सो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज इक्वल्स टू 5,45,000 माइनस 3,05,000। सो अल्टीमेटली इट इज़ 2,40,000। अभी कंपनी के पास 2,40,000 बैलेंस है, तो ये 2,40,000 कंपनी प्लांट मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स, ये तीन चीज़ें जो है उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करेगी, लेकिन किस में, उनकी जो बुक वैल्यू है उसके प्रपोर्शन में। तो चलिए प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स का जो प्रपोर्शन है वो निकालते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो है 2,20,000, स्टॉक की बुक वैल्यू है 1,10,000 एंड डेटर्स की बुक वैल्यू है 1,50,000। सो इसका अगर हम ज़ीरो जो है वो कैंसिल करें तो प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा 22, स्टॉक आ जाएगा 11 और डेटर्स आ जाएगा 15। सो इसी तरह से हमारे पास होगा 22/11/15 का रेशियो, जो टोटल है 48। अब चलिए राइट ऑफ करते हैं 2,40,000 इन प्रोपोर्शन में। प्लांट एंड मशीनरी इज इक्वल्स टू 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 22 एंड डिवाइडेड बाई 40 है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1,10,000। सो प्लांट एंड मशीनरी में से हमको 1,10,000 माइनस करने पड़ेंगे। स्टॉक जो है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 48, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 55,000। और डेटर्स जो है उसकी वैल्यू आएगी 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 15 एंड डिवाइडेड बाई 48, सो उसकी वैल्यू होगी 75,000। सो ये जो चीज़ें है वो हमको राइट ऑफ करनी है रिस्पेक्टिव अकाउंट में से। देन आफ्टर 14th जो कैलकुलेशन है वो हमको करना पड़ेगा क्लोजिंग कैश बैलेंस को फाउंड आउट करने के लिए। सो पूरे सम में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में से कंपनी को कैश मिला है और कौन कौन सी चीज़ों में कंपनी को कैश पे करना पड़ा है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कैश रिसीव। सो कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट सोल्व किया है उसमें से कंपनी को 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे, और डैमेज क्लेम जो रिकवर्ड हुआ है उसमें से कंपनी को 20,000 मिलेंगे। ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे कंपनी को कैश जो है वो रिसीव हो रहा है, तो टोटल कैश रिसीव इज़ 1,20,000। नाउ कौन कौन सी चीज़ों में कंपनी ने कैश पे किया है वो देखते हैं। कैश पेड, फर्स्ट थिंग इज 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल डिविडेंड, उसमें कंपनी 24,000 कैश पे करेगी। क्रेडिटर्स को कंपनी 10,000 कैश के रूप में दे रही है। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड में 6,000 का जो क्लेम एक्सेप्ट किया गया है वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन लास्ट बैंक ओवरड्राफ्ट जो कैश में पे हो रहे हैं 10,000 रुपीज़, वो भी लिखने पड़ेंगे। सो टोटल कैश पेड इज 50,000। सो क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू total cash received minus total cash paid. So it is equals to 1,20,000 minus 50,000 and 70,000 is the closing balance जो हमको फाइनल बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी। तो चलिए ये सारे कैलकुलेशन के बाद अब देखते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ शुभ कंपनी लिमिटेड। फर्स्ट जनरल एंट्री is equity share capital account debit ₹100 5 lakh rupees to equity share capital account ₹10, तो उसकी अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपीज़। बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 सब डिवाइडेड इंटू ₹10 each. Second is equity share capital account debit 3,50,000 to capital reduction account 3,50,000. बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस बाय 7, ये जो हमने कैपिटल रिड्यूस की है इक्विटी की 7 रुपीज़ से, वो उसके लिए ये जनरल एंट्री करी है। थर्ड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 24,000 टू 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट 24,000 बीइंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज डिक्लेयर, जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है उसके लिए। और फोर्थ एंट्री जो है वो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे करने के लिए। सो
10% cumulative preference share dividend account debit 24,000 to cash account 24,000, being preference share dividend is paid. Fifth is outstanding debenture interest account debit to 6,000 rupees to capitalization account 6,000 rupees. ये एंट्री जो डिबेंचर इंटरेस्ट वेव कर दिया गया है उसके लिए है, बीइंग आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट वेव्ड बाय डिबेंचर होल्डर. देन सिक्स एंट्री इज 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 60,000 टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट 40,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20,000, बीइंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेकन ओवर बाय डिबेंचर होल्डर, और उसमें जो 20,000 का प्राइस अप्रिशिएशन है वो हम कैपिटलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे. देन सेवन्थ एंट्री फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटलाइजेशन अकाउंट 20,000, being increase in the value of freehold property transferred to capital reduction account. ये जो अलग से एडजस्टमेंट था कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू 130 जो है वो कर दी गई है, सो उसमें 20,000 का जो इंक्रीमेंट मिलेगा ये वो 20,000 का इंक्रीमेंट है जो कैपिटल रिडक्शन में हम ट्रांसफ़र करेंगे. 8 जनरल एंट्री 10% cumulative preference share capital account debit 90,000 to capital reduction account 90,000, being preference share capital reduced by rupees 3. Ninth general entry cash account debit 1 lakh rupees to investment account 90,000 to capital reduction account 10,000. capital reduction account में 10,000 जो प्रॉफिट है वो हम क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए गए हैं उसका, being investment sold and profit transfer to capital reduction. 10th general entry creditors account debit 1 lakh to equity share capital account 85,000 to cash account 10,000 to capital reduction account 5,000, being equity share and cash given to creditors and remaining amount waived is transferred to capital reduction account. 11th general entry workman accident compensation fund account debit 6,000 to cash account 6,000, being workman accident compensation fund claim accepted and you can say paid. जो हम पे करेंगे उसके लिए ये एंट्री है. 12th जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू डैमेज क्लेम अकाउंट 20,000, बीइंग अमाउंट ऑफ डैमेज क्लेम इज रिसीव. ये जो डैमेज क्लेम की अमाउंट कंपनी को मिल रही है उसके लिए एंट्री थी. देन 13th एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 25,000 to leasehold property account 25,000, being value of leasehold property is written off. ये जो एडजस्टमेंट में था. Then 14th general entry capital reduction account debit 4,96,000 to goodwill account 90,000 to preliminary expense account 20,000 to P&L account 146 to plant and machinery account 1,10,000 to stock account 55,000 to debtors account 75,000, being amount of capital reduction is utilized. जो ये सारी इंटेंजिबल असेट्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और ये सारे जो लॉस है उसको राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट जो है वो यूटिलाइज की जा रही है. देन 15th जनरल एंट्री बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, being बैंक ओवरड्राफ्ट इज पेड. चलिए अब ये सारी जो स्कीम है कैपिटल रिडक्शन की वो अप्लाई हो जाने के बाद शुभ कंपनी लिमिटेड की फाइनल बैलेंस शीट जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं. बैलेंस शीट ऑफ शुभ कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2018. फर्स्ट थिंग इज इक्विटीज एंड लायबिलिटीज. इन दैट फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड. पॉइंट ए इज़ शेयर कैपिटल. सो इक्विटी शेयर कैपिटल जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि एक जो इक्विटी शेयर रहेंगे वो रहेंगे 3 रुपीज़ पर शेयर, और एक जो हमने क्रेडिटर्स को 10 रुपीज़ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर इश्यूड किए हैं सो उसकी वैल्यू रहेगी 10 रुपीज़. तो यहाँ पे देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 अमाउंट इज़ 1,50,000 एंड जो हमने क्रेडिटर्स को दिए हुए हैं उसकी वैल्यू रहेगी इक्विटी शेयर कैपिटल 8,500 मल्टीप्लाई बाय 10 सो अमाउंट इज़ 85,000.
और उसके अलावा 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹7 ईच, then 30,000 preference share multiplied by 7, so amount is 2,10,000. Then B is reserve and surplus, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास था लेकिन हमने उसको कैपिटल रिडक्शन में यूज़ कर लिया है, तो अभी हमारे पास कोई भी रिजर्व नहीं है। सेकेंड पॉइंट, नॉन करंट लायबिलिटीज़, उसमें जो है 12% सिक्योर डिबेंचर रहेंगे। 1,10,000 टोटल में से 60,000 रुपीज़ जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डिबेंचर होल्डर ले गए थे, सो वो हमको यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी, एंड 1,10,000 माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू 50,000 रिमेनिंग। थर्ड इज करंट लायबिलिटीज, इन दैट क्रेडिटर्स 1,70,000 माइनस 1 लाख, बिकॉज 1 लाख के जो क्रेडिटर्स थे वो कंपनी ने उसको इक्विटी शेयर और कैश दे के जो है सेट ऑफ कर दिया है। सो 1,70,000 माइनस 1 लाख, सो अमाउंट इज रिमेनिंग अमाउंट इज 70,000, सो टोटल इज 5,65,000. Then after, second is assets, in that first is non-current assets and point A is fixed assets and sub point A is tangible assets, in that one is freehold property 1,30,000 जो रिवैल्यूड की गई थी, then plant and machinery 2,20,000 minus 1,10,000, so remaining is 1,10,000. Leasehold property 1,50,000 minus 25,000, so it is 1,25,000. Then B is intangible assets, but we don't have any intangible assets right now. Then second point is current assets, in that first is debtor जो कि है 1,50,000 के, उसमें से 75 रिड्यूस करने हैं, सो रिमेनिंग इज 75. Then stock 1,10,000 minus 55,000, then remaining is 55. And cash or you can say bank balance जो हमने कैलकुलेट किया था, that is 70,000 rupees. So total is 5,65,000. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी एंट्रीज और एडजस्टमेंट के रिलेटेड डाउट है तो भी आप बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने की। और इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट वीडियो, और ये वीडियो जो है वो शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।